Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333886. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहले रिवाइज कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक की। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में हम ऑब्जर्व करते हैं एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक को। AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। आई रिपीट, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 29 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसी के साथ साथ 26 नवंबर को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये हम कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व करते हैं। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 26 जनवरी को ही हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? रिपब्लिक डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हो गया था, रेडी हो गया था, कंप्लीट हो गया था। लेकिन जो लागू हुआ वो हुआ था रिपब्लिक डे पे, इम्प्लीमेंट किया गया था रिपब्लिक डे पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाता है रोल्स रॉयस। इसने अभी पहला हाइड्रोजन पावर्ड जेट इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ठीक है, डायरेक्ट न्यूज़ याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ BSE कौन अपॉइंट किए गए हैं सेबी के द्वारा? वो है सुंदरारमन रामामूर्ति। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। सुंदरारमन रामामूर्ति को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ BSE। नेक्स्ट, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग क्या होता है? बेसिकली किसी को धोखा देना किसी चीज़ के लिए, मतलब आपको उनसे कुछ काम कराना है, उसके लिए उनको मिसगाइड करना, तो ये गैस लाइटिंग होता है। मैरियम वेबस्टर जो एक US बेस्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, इनके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का क्या घोषित करा गया है? गैस लाइटिंग। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं GDP की। SBI के द्वारा भी GDP ग्रोथ रेट इंडिया की है तो सेकंड क्वार्टर की बात की है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एनुअल GDP की ग्रोथ की बात करूं फॉर फिस्कल ईयर 23 ऑफ इंडिया विल बी अराउंड 6.8% एज पर द SBI डाटा। यहीं पे अगर मैं RBI डाटा की बात करूं तो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई टू बी अराउंड 7%। और अगर मूडीज़ की बात करूं तो मूडीज़ ने भी इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 7% प्रोजेक्ट की है, जो कि पहले 7.7% प्रोजेक्ट की गई थी। ऑल ये सारे रीज़न क्या है? रिसेशन की बात चलना, इन्फ्लेशन बढ़ जाना, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमें
काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल देखने को मिल रहा है जियोपॉलिटिक्स में भी, इवन वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं ऐसी कंडीशंस को। नेक्स्ट आ जाते हैं सामनवेद 2022। ये एक एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, और जो लोकेशन रहेगी जहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया था वो था एयरफोर्स स्टेशन, जो कि कहाँ पर है, आगरा में। आगरा यूपी में जो आपका एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था सामनवेद 2022 को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्ट्रा हिंद 2022। ये ऑस्ट्रा हिंद 2022 आपकी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। लोकेशन याद रखेंगे, बीकानेर राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, और ये फर्स्ट एडिशन है इस एक्सरसाइज का जो कि कंडक्ट कराया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे रिवीजन। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे जो कि आज के करंट अफेयर्स रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नीति आयोग के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई है टू स्टडी द कार्बन कैप्चर। कार्बन कैप्चर को भी आप कैसे समझेंगे, CCUS के नाम से समझेंगे। ये क्या है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। ये रिपोर्ट थी जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई थी। आई रिपीट, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। ये रिपोर्ट का नाम है जो किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई थी। प्रिपेयर किसने किया इस रिपोर्ट को, MN दस्तर एंड कंपनी के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया, और इस रिपोर्ट में बताया गया कि अंडर द स्कीम जो हम इंडस्ट्रियल हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो हम इंडस्ट्री में वेरियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देखो मेन चीज़ क्या है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट आप इसको सिर्फ ये ना समझिए कि पेन पेंसिल पेपर ये आपके प्रोडक्ट हो गए। प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ आपके हाथ में, जो फ़ोन है वो भी एक प्रोडक्ट है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर हम डेवलप करते हैं इंडस्ट्री में तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं पॉल्यूशन रिलीज़ किया जाता है, पॉल्यूशन आपका क्रिएट करता है जो कि आपके एटमॉस्फेयर को काफ़ी हार्म करता है। ये जो पॉल्यूशन होता है ना, इसको एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स, काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं कि जैसे आपका जो पॉल्यूशन, जो चिमनीज़ होती हैं वहीं पर इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं ताकि जो आपका एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एक्सेस कार्बन कंटेंट होता है ना, जो आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर सकता है, उसको कैप्चर किया जा सके, एंड जो रेस्ट रेजिड्यू बच गया वो आपका लेस पॉल्यूटेड एयर होगा या फिर ना के बराबर पॉल्यूटेड एयर होगा, जिसको आप हवा में छोड़ सकते हैं इजीली। ठीक, तो जो ये आप कार्बन कंटेंट कैप्चर किया गया है, इस कार्बन कैप्चर को कंटेंट को आप कैप्चर करके वेरियस प्रोडक्ट्स बना के भी बेच सकते हैं। जैसे आप इसको पॉलीमर्स, फूड एंड बेवरेजेस फॉर्म एप्लीकेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स, यूरिया, ग्रीन यूरिया, एनहेंस ऑयल रिकवरी, इन सारी चीज़ों को आप बना के यहाँ पे बेच सकते हैं, और ये कमर्शियल मार्केटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। ऑलराइट, तो याद रखेंगे ये है आपका CCUS, और ये आपके रिपोर्ट का नाम था जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज करी गई थी। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया जो है ना वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का आफ्टर चाइना एंड USA। द रोल ऑफ CCUS इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया इन अचीविंग इट्स टारगेट ऑफ 50% ऑफ इट्स टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज एंड 45 रिडक्शन इन एनर्जी इंटेंसिटी बाय 2030। एंड इंडिया का टारगेट ईयर क्या रहेगा टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, वो है 2070। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की। आई रिपीट, हम बात करेंगे 53rd एडिशन ऑफ फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की। ये आपका 20 नवंबर से लेके 28 नवंबर के बीच में हम ऑब्जर्व करते हैं 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अब पूछा जाएगा ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये गोवा में ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, ठीक है, गोवा में ऑब्जर्व किया जाता है 53rd फिर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यहीं पर आपको याद रखना है ये किस थीम पे बेस्ड था, तो ये वसुदेव कुटुंबकम आपकी थीम पे बेस्ड रहेगा ये फेस्टिवल। इवन अगर आपको याद हो तो वसुदेव कुटुंबकम ये वो थीम है जो कि G20 के इंडिया ने जब प्रेसिडेंसी हासिल की थी या चेयरमैनशिप हासिल की थी G20 की, उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोगो और थीम लॉन्च की थी वो थी आपकी वसुदेव कुटुंबकम। यहीं पे अगर G20 की बात करें 1 दिसंबर मतलब आज से लेके 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहेगी, और जो 18th
समिट होगी G20 की, वो कहाँ पर होगी? न्यू दिल्ली में होगी। कब होगी? सितंबर मंथ में होगी 2023 में। और इससे पहले प्रेसिडेंसी किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास थी। सो कमिंग बैक, याद रखेंगे IFFI 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। 20 से 28 नवंबर तक हुआ। एंड जो IFFI है, ये एनुअल फिल्म फेस्टिवल है जो किस थीम पे बेस्ड था? वसुदेव कुटुंबकम। इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराया था किसके द्वारा? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको ऑब्जर्व कराया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्टर, पॉज करके पढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है जब आपका कोई बच्चा जन्म लेता है, वो जिंदा रहता है एंड या फिर उनकी जो डेथ हो जाती है, उसको मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, मोर्टेलिटी रेशो। तो अगर देखा जाए तो जो इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है ना, कि कितने बच्चों ने जन्म लेते ही उनकी डेथ हो गई, तो वो 2018-20 का जो डाटा आया वो है 97 चिल्ड्रन आउट ऑफ 1 लाख बर्थ, मतलब हर 1 लाख बर्थ पे 97 बच्चों की डेथ हुई है। ये इंडिया का डाटा है एज पर 2018-20, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी डाटा। अगर ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की ही मैं बात करूं 2014 से 2016 के बीच में, तो यही डाटा जो आपका था वो कितना था? जैसे अभी हम देख रहे हैं 97 है, लेकिन 2014 से 2016 के बीच में यही डाटा था आपका 130 डेथ्स पर 1 लाख लाइफ बर्थ। मतलब 1 लाख बच्चे अगर जिंदा होते हैं तो वहाँ पर 130 बच्चों की डेथ हो रही थी इन 2014-16 में। यही डाटा अब रिड्यूस होकर 97 रह गया है। इवन अगर स्टेट का नाम पूछे, वो विच इज़ द स्टेट जो कि हाईएस्ट आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, वो है असम विद 195 डेथ्स ऑफ दिस चिल्ड्रन पर लाख लाइफ बर्थ। और अगर लीस्ट पूछें, सबसे लोएस्ट, तो कहाँ पर है? केरला में है विद 19 लाख लाइफ 19 डेथ्स पर 1 लाख लाइफ बर्थ। ऑलराइट, ये डाटा याद रखेंगे। और अभी 2014 का क्या है? तो देखो 2014-2016 का जो डाटा था वो था 130 पर लाख लाइफ बर्थ, और यही रिड्यूस हो गए, कितना हो गया? 97 पर लाख लाइफ बर्थ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इन्होंने कभी MOU साइन किया है 6 टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के साथ। वो हैं आपके IIT भुवनेश्वर, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ जयपुर जो कि NIT जयपुर है, IIT इंदौर, IIT पटना, IIT मद्रास, NIT त्रिची। रीज़न बीइंग ये आपका BIS ने इन 6 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किया वॉज कि जो वहाँ आपकी करिकुलम है उसको बेटर किया जा सके, जो आपका टीचर स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको बढ़ाया जा सके, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को सेटअप किया जा सके एंड एनकरेज किया जा सके टू मोर एंड मोर, कि जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं वहाँ पे, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनमें इंडल्ज हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करें इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। गवर्नमेंट ने अभी एग्जेम्प्ट कर दिया इसरो को फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ एक्सप्लोजिव रूल्स। अगर ध्यान दें तो 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसरो को एग्जेम्प्ट के लिए एक रूल लाया था कि जो एक्सप्लोजिव है ना उनको रखा जा सकता है, बट अब उसको इसरो को उस रूल से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो ये न्यूज़ याद रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इसरो है तो रॉकेट्स बनाएगी, तो डेफिनेटली जो इनका सॉलिड प्रोपेलेंट होगा वो कंबस्टेबल होगा और वो कहीं पे स्टोर करेंगे, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो कंबस्ट हो सकता है, तभी वहाँ पे सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो किए जाते हैं। लेकिन इसीलिए ये एक्सप्लोजिव के रूल्स को, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी व्यक्ति एक्सप्लोजिव को अपने पास नहीं रख सकता, उसके लिए परमिशन प्रॉपर लेना पड़ता है। तो अभी इसीलिए गवर्नमेंट ने इसरो को एग्जाम्पशन दे दी कि वो वहाँ पे अपने प्रोपेलेंट को स्टोर कर सकते हैं, जो सॉलिड फ्यूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बोट मैन्युफैक्चरर नवाल्ट सोलर को अभी पहला उनका एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जो कि कहाँ से आया है? मालदीव से आया है, वर्थ 5 करोड़ रुपीस का। आई रिपीट, नवाल्ट सोलर को, जो कि कोची बेस्ड सोलर इलेक्ट्रिक बोट मैन्युफैक्चर है, इनको अभी इलेक्ट्रिक बोट्स का पहला ऑर्डर रिसीव हुआ, जो कि 5 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर रहेगा। मालदीव से ऑर्डर था। ये जो फेरीज हैं 20 मीटर लॉन्ग होंगी, 7 मीटर वाइड होंगी, और ये आपके
इंटर आइलैंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में यूज होंगी ऑफ द मालदीव्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वर्ल्ड का बिगेस्ट बैरियर रीफ कहाँ पर है? वो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये आपका बिगेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम है। अभी रिसेंटली इसी बिगेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम को आपका इन डेंजर कैटेगरी में रखने की बात की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो डाटा है कि इनको हमें इन डेंजर कैटेगरी में रखना चाहिए, किसके द्वारा? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड यूनेस्को के द्वारा, इस के रिसर्चर्स जो हैं उनके द्वारा इस ग्रेट बैरियर रीफ को, वर्ल्ड के बिगेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम को इनसाइड डेंजर की हमें रखने की बात की गई, क्योंकि हम जानते हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है इन कोरल रीफ पे भी। एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि आने वाले कुछ सालों में ये जो कोरल रीफ्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इनको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो। यहीं पे यूनेस्को की अगर मैं बात करता हूँ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? पेरिस, फ्रांस में। और 193 मेंबर्स हैं एंड 11 एसोसिएटेड मेंबर्स हैं। 1945 में ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और पेरिस, फ्रांस की मैं बात करूँ तो यहीं पे आपके ओलंपिक गेम्स होंगे अब 2024 में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल शिपिंग ग्रोथ एट रिस्क फ्रॉम इकोनॉमिक ग्लूम। हम जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन की न्यूज़ चल रही है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, ठीक है, एंड जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई चेन क्राइसिस हुआ है, जियो पॉलिटिक्स अनसर्टेन है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से एंड इवन एक न्यूज़ आती है कि देयर इज़ अ हाई चांस कि आने वाले फ्यूचर में हम 1-2 साल रिसेशन देखने को मिल सकता है। इसी की वजह से जो हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस है, जो ग्लोबल ग्रोथ है, जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है, वो एक हॉल्ट पर आ रखा है, वो बहुत स्लो है, अभी उसमें ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। एज़ पर द डाटा 2022 में 1.4% हमें मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिली ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यही डाटा आपका 1.4-1.5 ही % रहेगा इन 2023 भी। ये डाटा रिलीज़ किसके द्वारा किया गया? UNCTAD के द्वारा इस डाटा को रिलीज़ किया गया था। एंड इन्होंने क्या रिपोर्ट रिलीज़ की जिसका नाम है रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2022। आई रिपीट, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2022 ये रिपोर्ट का नाम है, जो कि UNCTAD के द्वारा रिलीज़ करी गई थी। और इसी में ये सारी चीज़ बताई कि पैंडेमिक, पहले लॉकडाउन लग गया, फिर आपकी वॉर लाइक सिचुएशन, फिर इन्फ्लेशन के रीज़न एंड अब रिसेशन की बातें करना। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जोड़ें और जियो पॉलिटिक्स रीजन को मिलाएं तो हमें आता है कि जो ओवरऑल ग्रोथ है, सप्लाई चेन क्राइसिस है, वो कहीं ना कहीं एक हॉल्ट पर है अभी। नेक्स्ट बात करते हैं मंकी पॉक्स की। मंकी पॉक्स थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी एंड रेसिस्ट लगता था ये वर्ड, इसलिए इस डिजीज़ का नेम जो मंकी पॉक्स है उसको चेंज करके एम पॉक्स रख दिया गया एज पर WHO ने इस नेम को चेंज किया। आई रिपीट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो मंकी पॉक्स का नाम है उसको चेंज करके अब क्या कर दिया है? एम पॉक्स कर दिया, साइटिंग द रीजन ऑफ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न्स। अभी तक काफ़ी सारी कंट्री में हमें मोर देन 80,000 केसेस देखने को मिल चुके हैं सो फार। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $100 मिलियन लोन, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा है मालदीव्स को। इससे क्या होगा? जो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, जैसे जो छोटे छोटे नेशंस हैं ना ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख रहे हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, जैसे श्रीलंका में आपने देखने को मिला, पाकिस्तान में आपको देखने को मिला, तो ये सारे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। तो इसीलिए मालदीव्स को हेल्प करने के लिए, एंड मालदीव्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के इंडियन ओशन रीजन में, तो इसीलिए मालदीव्स को अभी $100 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है इंडिया के द्वारा। और ये मनी जो मालदीव्स को प्रोवाइड किया जाएगा वो एज़ पर देयर नीड्स, जैसे भी उनको जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, जिस भी एरिया में वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वहाँ पे इस एरिया में वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जो ये $100 मिलियन है ना, ये इंडिया के द्वारा मालदीव्स को प्रोवाइड किए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स, डोमेस्टिक ट्रेजरी बॉन्ड्स की तरह ये प्रोवाइड किए जाएंगे। और किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, ये भी याद रखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करेंगे। अगर पूछा जाए कि सेबी हैज़ हाइक द डेप्ट फंड लिमिट टू 12% in single issuer certificate. I repeat, SEBI has increased the investment limit of mutual funds in debt instrument issued by a single issuer to 12% of the net asset value from 10% जो पहले था। ठीक है,
डायरेक्ट हैं, याद रखेंगे। एग्जिस्टिंग स्कीम्स विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर द मैच्योरिटी, और जो मतलब जो पुरानी स्कीम है ना, जो पुराने म्यूचुअल फंड चलते आ रहे हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते, लेकिन जो अब नए म्यूचुअल फंड्स आएंगे उनको 10% की जगह हमें 12% होगा उसमें। मूविंग ऑन, येस बैंक। येस बैंक ने अभी टर्टल फिन के साथ पार्टनर किया टू लॉन्च इजी एंड श्योर। ये इजी एंड श्योर क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। इजी एंड श्योर बेसिकली एक प्रोडक्ट है आपका, जो क्या है वो मल्टीपल इंश्योरेंस पार्टनर्स को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर ले आएंगे। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि जैसे आप किसी भी मार्केट में, जैसे आप अमेजोन पे जाते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो आप वहाँ पे उस प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो आपको वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, जो उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं लेकिन डिफरेंट सेलर्स हैं, वो आ जाते हैं कि आप इससे बाय कर सकते हैं, इससे बाय कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, क्वालिटी कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली ईजी एंड श्योर क्या करेगा, काफ़ी सारे जो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, उन सभी को एक ही पोर्टल के अंदर, एक ही छत के अंदर ले आएगा, एक ही रूफ के अंदर ले आएगा। उससे क्या होगा, जो कस्टमर्स हैं उनको एक बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी और उनको ऑप्शन मिलेगा कि वो किस पर्टिकुलर इंश्योरेंस के साथ जाना चाहते हैं। तो इसीलिए टर्टल फिन, येस बैंक ने अभी टर्टल फिन के साथ ये टाई अप करा है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अभी तक जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने टोटल प्रीमियम रेज किया टू ऑफ अराउंड 6050 करोड़ रुपीज़, और सॉरी 6050 लाख रुपीज़ का इन्होंने अभी तक प्रीमियम को रिकॉर्ड किया। अगर यहीं पे मैं बात करूं, येस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वो है प्रशांत कुमार। और कब इस्टेब्लिश किया गया था इसको, 2004 में इस्टेब्लिश करा गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ऑलराइट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एसबीएम बैंक इंडिया ने, इन्होंने अभी एक पार्टनरशिप फॉर्म की है ज्विच के साथ। ज्विच क्या करता है, बेसिकली ये आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं, मतलब एंड टू एंड जो आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट करके देते हैं। और यही आपकी जो एक फिनटेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उनमें बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर एपीआईज लगा के देना उनको, सारे ड्रैग एंड ड्रॉप डैशबोर्ड की तरह प्रोवाइड करना, प्लगइन्स प्रोवाइड करना, वो सारा काम आपका ज्विच का रहेगा। ठीक है, इसीलिए एसबीएम बैंक ने अभी इंडिया ज्विच के साथ अभी एक पार्टनरशिप फॉर्म की। मूविंग ऑन, आप जैसे जो बच्चे इंस्टाग्राम वगैरह एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनको द्वारा उन्होंने पढ़ा भी होगा। देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं ना, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो मैं आपको वहाँ सजेस्ट करूँगा कुछ जीके के और करंट अफेयर्स के एंड जीएस के, ये 3 चैनल, वेरियस चैनल, इनको आप सर्च कीजिए। जो अच्छे चैनल है ना, जो डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड करते हैं, उनको ज़रूर फॉलो करना। उससे क्या होता है कि जैसे आप टाइम पास के लिए जब आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये भी चैनल फॉलो करें। क्या होगा कि अगर आप अभी 1 घंटा स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप 1 घंटा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर की चीज़ें देखने के लिए। लेकिन अगर आप इन चैनल्स को फॉलो करते हैं ना, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके बीच में कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिलता रहेगा, जो कि आपके करंट अफेयर से भी रिलेटेड होगा, जो आपके जीएस से भी रिलेटेड होगा, जो कि आपकी एक रिवाइज कराने में, एक्साइटिंग वे में रिवाइज कराने में मदद आएगा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या है, एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर होने जा रहा है। मार्च 2024 तक ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स ने एग्री किया ये एयर इंडिया एंड विस्तारा का कि हम मर्जर कर देते हैं। और यहाँ पर जो सिंगापुर एयरलाइंस है वो कुछ 250 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगी, एज पर द टाटा सन्स का जो प्लान है उसके हिसाब से। यहीं पर जो एनलार्ज एयर इंडिया ग्रुप बनेगा, उसमें जो सिंगापुर एयरलाइंस है उनका 25.1% का स्टेक रहेगा। बाकी 50.1% का स्टेक किसके पास रहेगा, वो है विस्तारा के पास। ठीक, और बचा आपका जो स्टेक है वो आपका रहेगा टाटा सन्स के पास। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले जाक्सा। जाक्सा क्या है, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। ठीक, जाक्सा के द्वारा, जो कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, इन्होंने अभी रिसेंटली एक स्टीम, जिसको हम वाटर प्रोपेल्ड कहते हैं, स्टीम प्रोपावर्ड स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया स्पेस में। ठीक है, आई रिपीट, स्टीम पावर्ड, स्टीम मतलब पानी से भाप बना के उसको पावर कर, एनर्जी जनरेट करना, वो होता है आपका स्टीम पावर्ड। तो स्टीम पावर्ड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया जाक्सा के द्वारा। फिर आपको याद रखना है, ये जो नासा का ओरायन
स्पेसक्राफ्ट था, उसमें ये आपका स्पेसक्राफ्ट स्टीम पावर्ड स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। इवन इसी के साथ साथ आपको इसका नाम भी याद रखना पड़ेगा, जो ये स्टीम पावर्ड स्पेसक्राफ्ट रहेगा वो है EQUULEUS। आई रिपीट, एक्लस, EQUULEUS। एक्लस वो आपके नासा जापान की जापान का स्टीम पावर्ड स्पेसक्राफ्ट का नाम रहेगा, जो कि नासा के ओरियंट स्पेसक्राफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, और ये वर्ल्ड का पहला ऑर्बिट कंट्रोल्ड बियॉन्ड लियो यूजिंग अ स्टीम वाटर प्रोपेलेंट प्रोपल्शन सिस्टम रहेगा। ऑलराइट, चलिए ये हो गई न्यूज़। अब नेक्स्ट आते हैं मैग्नस कार्लसन के बारे में। मैग्नस कार्लसन ने अभी रिसेंटली चैंपियन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ चेस की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि किनको अभी किस चेस प्लेयर को, इंडियन चेस प्लेयर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो है आर प्रज्ञनंदा। आर प्रज्ञनंदा को अभी रिसेंटली अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जियांग जेमिन। इनका रिसेंटली निधन हो गया है। 96 की एज में इनका निधन हुआ। 1926 चाइना में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 1989 से ये कम्युनिस्ट पार्टी का लीड कर रहे हैं, और उसी से चाइना की जो हिस्ट्री में इतना हम हिस्टोरिक चेंज देखने को मिलता है कि चाइना इतनी बड़ी मार्केट बन गया है, चाइना एक फैक्ट्री बन गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो सारा क्रेडिट किसको जाता है? जियांग जेमिन को, ठीक है। इनका निधन कैसे हुआ? ल्यूकेमिया से एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुआ, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है चाइना के। नेक्स्ट आ जाते हैं डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। 30 नवंबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। ये डे ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? कि जो भी लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो भी सफ़र किए हैं ड्यू टू केमिकल वेपन्स, और केमिकल वेपन्स बहुत डेंजरस होते हैं। इवन जो वॉर लाइक सिचुएशंस होती है ना, वॉर्स में केमिकल वेपन्स को बैन किया हुआ है कि कोई भी कंट्री अगर वॉर में जाती है तो केमिकल वेपन्स यूज़ नहीं करेंगी। इवन रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है ना, यहाँ पर केमिकल वेपन्स बैंड है कि कोई भी कंट्री केमिकल वेपन्स को यूज़ नहीं करेगी, ठीक है। इसको वॉर क्राइम के नाम से जाना जाता है कि कोई भी जो आप क्राइम करते हैं ड्यूरिंग वॉर जो कि लीगल नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। द सोल रीजन बीइंग कि जब आप किसी को डोनेशन करते हैं अपना ऑर्गन या डोनेट करते हैं तो उससे क्या होता है? सामने वाले की जान बच जाती है। तो ऐसे केस में आपको उन लोगों को सम्मानित करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए हम नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व करते हैं 27 नवंबर को। तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। नीति आयोग के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी ऑन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करें, कब होस्ट किया गया था? 20 से 28 नवंबर के बीच में, और कहाँ पर? गोवा में होस्ट किया गया था। इंडिया की मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें, ये डिक्लाइन कर गया टू 97 पर लाख लाइव बर्थ 2018 से 20 के बीच में। BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इन्होंने एक MOU साइन किया टॉप 6 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के साथ टू इंट्रोड्यूस इंडियन स्टैंडर्ड इन करिकुलम। गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया इसरो को फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ एक्सप्लोजिव रूल्स। ICHR ने अप्रूव किया इसरो को टू कंपाइल इंडियाज एंशिएंट लेगेसी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिक बोट मैन्युफैक्चर नवॉल्ट सोलर, इनको पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला मलेशिया से। यूनेस्को ने रिकमेंड किया टू प्लेस ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ ऑन इन इंडेंजर्ड लिस्ट, और IUCN एंड यूनेस्को के रिसर्चर्स ने मिलकर इस डाटा को पब्लिश किया। देन UNCTAD की बात करूँ, इन्होंने रिव्यू किया ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट फॉर 2022 कि जो हमारी ग्लोबल शिपिंग है ना, वो एक रिस्क पर है ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। WHO ने जो मंकी पॉक्स का नाम है उसको चेंज करके M-Pox कर दिया ड्यू टू रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न्स। फिर इंडिया ने अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ वर्थ 100 मिलियन एक्सटेंड किया टू मालदीव। सेबी ने हाइक किया डेप्ट फंड को लिमिट टू
12% जो कि पहले 10% था। SBN बैंक एंड ओपन ने पार्टनर किया टू लॉन्च एशियाज फर्स्ट एंड टू एंड एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म। येस बैंक ने पार्टनर किया टर्टल फिन के साथ ताकि पहला कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ईजी एंड श्योर लॉन्च किया जा सके, जो कि क्या है मल्टीपल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स को एक पोर्टल के अंदर लाने के लिए। फिर टाटा ग्रुप एंड सिंगापुर एयरलाइंस ने एग्री किया टू मर्ज एयर इंडिया एंड विस्तारा बाय मार्च 2024। जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने वर्ल्ड का पहला स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जो कि एक्लेस नाम से रहेगा। फिर आ जाता है मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर की बात करें तो मैग्नस कार्लसन यहाँ पे विजेता रहे। और इंडिया के कौन से ग्रैंड मास्टर हैं या चेस प्लेयर हैं जिनको अभी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है आर प्रज्ञानंदा। फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जियांग जेमिन, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 96। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर वाइस चेयरपर्सन विक्रम किर्लोस्कर, इनका निधन हो गया। डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर 2022 हम 30 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल जैगुआर डे 29 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। एंड मेघालय कैबिनेट ने अभी एक मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी को लॉन्च किया। ठीक, इसको भी मार्क करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारे करंट अफेयर्स आज के। अब आ जाते हैं आपके इम्पॉर्टेंट होमवर्क पर। पहला है सामन्वय 2022। ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है। साथ ही साथ मुझे बताओ ये लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था सामन्वय को। देन किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा नई चेतना ये कैंपेन को लॉन्च करा गया। तीसरा है हु इज़ द हेड ऑफ द पैनल सेटअप टू रिवैम्प महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा को पैनल को जो हेड करेगा वो कौन है, क्योंकि हम जानते हैं अभी मनरेगा के लिए एक पैनल सेटअप किया गया है। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च इट्स मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। बताओ, अभी डिस्कस किया है हमने ये। फिफ्थ, विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल। तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके। कोई भी दिक्कत आती है सेशन में तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तब भी नीचे कमेंट कीजिए और हमें बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम कंटेंट रेगुलर ला सके एंड आपके लिए बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। इसी के साथ साथ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। लाइक के साथ साथ फ्रेंड्स जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए एक सजेशन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी हम कंटेंट डालते हैं आपको प्रोवाइड किया जा सके। हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। डेली के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, आप हमारी एप्लीकेशन जो कि कैरियर क्लाउड्स के नाम से है उस पर जाके आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट लाएगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं। और ये जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होते हैं जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड इवन इम्पॉर्टेंट डेज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.